We are starting with new batch और new class goods and service tax GST की class start कर रहे हैं. It is going to be very interesting and subject हमारी practical हमारी जो real life है उससे connected है पूरा. What is goods and service tax? We all are very familiar with the words GST. GST से काफी familiar है. नाम तो सुना है, कहाँ पर लगना है, कैसे लगना है, वो सारी चीजें हमें समझ ली इसकी. Right? When we use the word GST, goods and service tax, so it is a type of a indirect tax. It is a form of indirect tax. When you use the word GST, so it is a form of indirect tax. To understand what is indirect tax, firstly we have to start from the scratch of the tax. Tax के scratch से लेते हैं, basic से क्या होता है tax. तो tax जैसे कि almost हम सबको पता है, tax क्या है? Tax is basically a type of a revenue to the government. Tax is a revenue for the government. Government has many ways to earn revenue. One of the ways is collection of the taxes. Collection of taxes. Taxes in India are of two types. India के अंदर taxes दो तरीके के होते हैं. एक होता है direct tax और एक होता है indirect tax. Direct tax we are already done with. Today we have started with indirect tax. The supreme authority to look after these two taxes in India is central government. Central government is the supreme authority to look after the taxes in India. Supreme authority is central government. Central government has made some ministries for this work, like Ministry of Finance. Under the Ministry of Finance, there is a Department of Revenue. Under the Department of Revenue, there are two departments. Number one, CBDT, who looks after the direct taxes. That is Central Board of Direct Taxes. And another is CBIC, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs. Central Board of Indirect Taxes and Customs. ये दोनों होते हैं. ये जो है कौन सा टैक्स के ऊपर देखता है? ये खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टाइप के टैक्सेस आते हैं? सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा जो टैक्स हमारा वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है. इसके अलावा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम्स भी आएगा. ठीक है, कस्टम्स भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जो हमारे कोर्स के अंदर है. राइट, स्टार्ट विद जीएसटी. जीएसटी स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक समझना जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या. जिन्होंने कभी लिया नहीं, कभी समझा नहीं, वो समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस चीज क्या. व्हेन वी यूज द वर्ड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स एक वो टैक्स है जो डायरेक्टली आप किसको पे करते हो? डायरेक्टली द assessee pays to the government. For example, you have an income tax and you pay it to the government. When the person, public, when the assessee pays to the government, it is direct tax. मतलब जिसके ऊपर बर्डन है वही अगर सरकार को दे दे तो ये डायरेक्ट टैक्स. इसका ऑपोजिट होता है indirect tax. Indirect taxes are those taxes which are not paid directly to the government, rather they are being paid indirectly to the government. Indirectly कैसे दिया जाता है गवर्नमेंट को? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसा. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट. आप एक रेस्टोरेंट जाते हो. मैं इनिशियली इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी आपको ये एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर भी आप दोबारा बता रहा हूं, आप एक बार इसको ठीक से समझ. डायरेक्ट टैक्स के इंट्रोडक्शन में भी बताया, एक बार यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के इंट्रोडक्शन में फिर से समझ. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट. लेट्स अज्यूम आप पिज्जा हट जाते हो, वहां पर आप खाना खाते हो. आपका बिल आता है 1000 रुपीज का और 10% का टैक्स का रेट है. रेट ऑफ टैक्स इज 10%. 10% टैक्स का रेट होने की वजह से इस आपके बेसिक का बिल आ जाता है 1000 के ऊपर 10% का टैक्स आ गया 100 रुपए का. आपकी टोटल बिलिंग वैल्यू हो जाती है 1100 रुपीज.
टोटल बिलिंग वैल्यू हो जाती है 1100 रुपए। इन 1100 रुपए में से आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये 1100 रुपए आप मिस्टर एक्स विल पे 1100 रुपीज टू द रेस्टोरेंट। 1100 रुपए वो पिज्जा हट को दे देगा, इसमें 1000 रुपए उसके खाने के और 100 रुपए टैक्स। पिज्जा हट will keep 1000 rupees in his pocket and the balance of rupees 100 Pizza Hut will pay to the government. Now, why it is called indirect tax? Because Mr. X, Mr. X paid this amount to Pizza Hut and Pizza Hut paid to the government. If it would have been a direct tax, then Mr. X would have paid the same to the government. It is direct when the assessee on whose the tax is to be paid, by whom the tax is to be paid, directly pays to the government, then it is called as direct tax. When it is being paid by someone on whom the tax of burden is not there, that is called indirect tax. जैसे पिज्जा हट के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं था, उसने किसी से कलेक्ट किया, वो इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? सवाल आया सर हमारे यहाँ जीएसटी की क्या जरूरत आ गई, ऐसी क्या जरूरत आई कि हमें जीएसटी लेके आना पड़ गया? वाई देयर इज अ नीड ऑफ जीएसटी? इस नीड को समझने के लिए हमें पहले इसकी बनावट समझनी पड़ेगी, इसकी जरूरत समझनी पड़ेगी कि आया क्यों। इसको समझने के लिए हमें पुराना सिस्टम समझना पड़ेगा कि जीएसटी की नीड क्यों आई, जीएसटी आने से पहले क्या सिस्टम था। देखिए जीएसटी आने से पहले क्या सिस्टम था वो अगर हम समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई जीएसटी की नीड क्या है, क्यों जीएसटी आया, वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर द पब्लिक और इट इज हार्मफुल फॉर द पब्लिक। आपने देखा होगा जीएसटी जब आया था उस समय बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे कि जीएसटी क्यों आया, ये हमारे गलत है एक्सेट्रा। सो देयर इज अ कम्युनिटी ऑलवेज हु विल ऑलवेज अपोज टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट and there is a community always who will always support them without knowing the facts. So social media is good as well as has some negative things also. इसके कुछ negative points भी हैं। Negative क्या है कि facts check किए बिना ही हम बहुत सारी चीजों को समझने लग जाते हैं, ये उसमें negative चीज है। हमें ये समझना है कि जीएसटी की नीड क्या थी, क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसा एग्जाम्पल? लेट्स टेक एग्जाम्पल। जीएसटी आने से पहले का क्या सिनेरियो था, या मैं आपको वैट से भी पहले का सिनेरियो लेके चलता हूं। जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैट होता था, वैट से भी पहले लेके चलता हूं क्योंकि वैट से भी पहले क्या सिनेरियो था, फिर मैं वैट एंड देन जीएसटी का समझाता हूं। ठीक है, लेट्स अज्यूम देयर इज वन पर्सन कॉल्ड मिस्टर एम हु इज मैन्युफैक्चरर, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड मिस्टर डब्ल्यू हु इज अ होलसेलर, एंड देयर इज वन पर्सन कॉल्ड मिस्टर आर हु इज अ रिटेलर। कुछ अजम्पशंस लेनी हमें इससे पहले। इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ टैक्स इज 10%। इकोनॉमी के अंदर टैक्स का रेट स्टैंडर्ड कितना है? 10% का रेट। टैक्स का रेट कितना है? 10% का स्टैंडर्ड रेट। एक अजम्पशन लेते हैं समझने की। लेट्स अज्यूम मिस्टर मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज की एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, अगर आप ये ढंग से समझ लेते हो तो आगे की क्लासेस सारी इजी हो जाएगी आपकी, एंड आई एश्योर यू क्लास के बाद में अच्छे से समझ आएगा। एक प्रोडक्ट बनाया उन्होंने 100 रुपीज का, इस पे क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ टैक्सेस 10%, स्टैंडर्ड रेट कितना? 10%।
तो आपका टैक्स लग गया 10 रुपए, आपका टोटल वैल्यू हो जाती है 110 रुपए। मैं इसको सेल्स की टोटल भी बोल सकता हूं कि सेल वैल्यू ये है। इन्होंने एक इनवॉइस बनाई, इनवॉइस के अंदर इन्होंने 110 110 लिख के प्रोडक्ट टैक्स सेल्स वैल्यू, और ये किसके नाम की है, ये है मिस्टर डब्ल्यू के नाम की। ये किसने खरीदा, इससे डब्ल्यू ने खरीदा। किसने खरीदा, डब्ल्यू ने इसको पेमेंट की थी। डब्ल्यू जब अपनी बुक्स बनाएगा तो डब्ल्यू अपनी बुक्स में कितना लिखेगा, 110 110 रुपए डब्ल्यू लिखेगा। अज्यूम करते कि डब्ल्यू इसके अंदर 40 रुपीज की कुछ वैल्यू ऐड करता है। ये आटा है, इसने आटा किया, ये आटे से ब्रेड बनाता है, डब्ल्यू ब्रेड बनाने का काम करता है, और डब्ल्यू ने 40 रुपए का उसमें फर्दर प्रोसेसिंग की, कुछ वैल्यू को ऐड किया, वैल्यू एडिशन किया, और 40 रुपए का ब्रेड बना दिया उस आटे से। टोटल डब्ल्यू का हो गया 150 रुपीज, क्योंकि ये तो अभी टोटल हुई है, खाली प्रोडक्ट बनाई है। एग्री? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर टैक्स का स्टैंडर्ड रेट हमने अज्यूम किया हुआ 10%, तो इसके ऊपर टैक्स लग गया 15 रुपए का। नाउ टोटल वैल्यू 165 आ गई, दैट इज योर सेल्स में। इनवॉइस कुछ ऐसी दिखेगी, कैसी सर, यही इनवॉइस है आपकी, ये पैसे कौन देगा, इनवॉइस किसके नाम की है, आर के नाम की। हाउ मच आर विल पे, 165, जिसमें बाइफर्केशन क्या होगा, 150 प्लस 15, ये इनवॉइस ले लेंगे। आर मिस्टर रिटेलर या कंजम्पशन कंज्यूमर, दोनों में से एक भी कोई कर लो, कोई बात नहीं। आर अपनी टोटल में लिखेगा 165 कि मेरी इनपुट कॉस्ट कितनी है, 165। लेट्स अज्यूम आर इसके अंदर 35 रुपीज की स्वीटनेस डाल देता है उस ब्रेड में, और वो मीठा ब्रेड जो आता है, स्वीट ब्रेड जो आता है हमारा, ठीक है, कुछ उसमें फ्लेवर डाल के, और वो इसको कुछ डिफरेंट बना देता है, कुछ फ्लेवर डाल के और डिफरेंट बना देता है। नाउ कितनी है वैल्यू ऐड की आपने, 35 रुपीज, है ना। इट बिकम्स टोटल, टोटल कितना हो गया ये, हाँ जी 200 रुपए का हो गया, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर टैक्स का रेट है 10%, तो हमने इस पे 20 रुपीज का टैक्स लगाया। इट हैज बिकम टोटल 220 रुपीज। नाउ द कंज्यूमर इज कमिंग टू आर, मिस्टर कंज्यूमर, कंज्यूमर आर के पास आता है। कंज्यूमर, हाउ मच कंज्यूमर विल पे, उस ब्रेड के लिए 220 रुपए देगा। डू यू एग्री? सही है ये, कोई डाउट है इसमें? ये वैट से पहले का सिनेरियो था। एक चीज देखिए, अ प्रोडक्ट विच स्टार्टेड एट ₹100, अ प्रोडक्ट विच स्टार्टेड एट ₹100, you added value of ₹40 and 35, that means you added 75 rupees value. The total product value is 175, which is actually being sold at 220. सर दिखने को टैक्स की रेट कितनी है, 10%, बट 175 की चीज को कंज्यूमर के हाथ में आते थे कितनी हो गई, 220 रुपए। हाउ मच टैक्स इज बीइंग पेड ओवर हियर, उस प्रोडक्ट में टैक्स कितना दिया आपने, 45 रुपीज का टैक्स दिया, 45 रुपीज का टैक्स दिया। सर आप 175 रुपए के सामान के ऊपर 45 रुपए का टैक्स दे रहे हो। प्लीज कैलकुलेट द रेट ऑफ टैक्स, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना आ रहा है, कैलकुलेट करें अपने मोबाइल या कैलकुलेटर में। इकोनॉमी के अंदर
बोला गया कि सरकार कहती है हम लेते 10 रुपए है, 10%, बट एक्चुअल में ये कितनी आ रही है वो देखिए जरा। देखिए कितनी आ रही है, नियर अबाउट 25% और 26%, 26% के आसपास आपकी टैक्स की रेट आती है। आप ध्यान से समझिए, एक प्रोडक्ट जो मार्केट में 175 रुपए का है, उसमें गवर्नमेंट 45 रुपीज का आपसे टैक्स कलेक्ट करती थी। आपके हाथ में वो 220 रुपए का आता था। एक्चुअल रेट वॉज ऑलमोस्ट 26%। कह के गवर्नमेंट ऑन पेपर 10% टैक्स होता था, फिर ये 26% के नियर अबाउट टैक्स गवर्नमेंट लेती थी आपसे। ये पहले का सिनेरियो था, ये पहले का सिनेरियो था, ठीक है। इस वजह से महंगाई बढ़ती थी, टैक्स ऑन टैक्स होता था, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट्स बोलते। कैस्केडिंग इफेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो दैट मींस टैक्स ऑन टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस होते, एक ही सामान पे बार बार टैक्स लगता था। अब देखिए वैट का सिनेरियो आया, या स्लाइटली मैं जीएसटी का भी बताता हूं कि क्या था। आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल अगेन। देखिए, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, ही स्टार्टेड अ प्रोडक्ट। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए। सेम अजम्पशंस कि हमारा टैक्स का रेट या वैट का रेट 10%, 10%। नाउ आपका इसके ऊपर वैट कितना लगा, 10 रुपए, और ये बन के कितना तैयार हो गया, 110। एक इनवॉइस क्रिएट हुई, किसके नाम की, डब्ल्यू के नाम की इनवॉइस क्रिएट हुई, जिस इनवॉइस में लिखा गया प्रोडक्ट 100 एंड वैट 10, और टोटल उससे कितना ले लिया गया। डू यू अग्री टू दिस पॉइंट? डब्ल्यू ने कितना पे किया, 110। देखिए वैट में एक सिस्टम आया था, वैट में क्या सिस्टम आया कि जब भी नेक्स्ट पर्सन अपने इनपुट की वैल्यू अपनी बुक्स में लिखेगा, जब भी पर्सन अपने इनपुट की वैल्यू अपनी बुक्स में लिखेगा, तो वो टैक्स को एक्सक्लूड कर देगा। व्हाट इज द रूल? जब भी आप अपने इनपुट की वैल्यू लिखोगे तो आप उसमें से टैक्स के अमाउंट को एक्सक्लूड कर दोगे। अब जब W अपना इनपुट लिख रहा है तो W का इनपुट कितना आ रहा है, 100 रुपीज का, क्योंकि इसने 10 रुपए टैक्स दिया, वो लिखेगा। फाइन। नाउ W added how much, 40। W ने वैल्यू कितनी ऐड की, इसने ब्रेड बना दिया 60 से, टोटल बिकम्स 140 रुपीज। वैट लगेगा इस पे 14 रुपीज का। वैट कितना लगा, 14 रुपीज, 14 रुपए का वैट लगा। टोटल हो गया 154 रुपीज। इनवॉइस आर आया इससे खरीदने के लिए। हाउ मच आर विल पे, प्रोडक्ट 140, वैट टोटल। नाउ
सिंस इज इनडायरेक्ट टैक्स। यहां गवर्नमेंट एम के पास आई कि मिस्टर एम, हमारा एक टैक्स पड़ा है आपके पास, जो किसने दिया है? डब्ल्यू ने दिया है आपको। डब्ल्यू ने आपको हमें देने के लिए एक टैक्स दिया, यही तो इनडायरेक्ट टैक्स। डब्ल्यू ने किसको दिया टैक्स? गवर्नमेंट को या एम को? सेलर को। आप यही करते हो, पिज्जा हट जाते हो तो सेलर को देते हो आप, पिज्जा हट सेल्स यू द पिज्जा। डब्ल्यू ने बायर था और एम सेलर था। डब्ल्यू ने जब ये खरीदा तो डब्ल्यू ने उसको 110 रुपीज दिए थे। इस 110 रुपए के अंदर डब्ल्यू ने क्या क्या दिया? 100 रुपीज प्रोडक्ट के दिए और 10 रुपीज 100 उसने अपनी पॉकेट में रखे और 10 रुपए सरकार को दे दिए। यही हुआ होगा। डब्ल्यू को इस 110 के बदले क्या मिला? इनवॉइस एंड प्रोडक्ट। इनवॉइस मिल गई और प्रोडक्ट मिल गया। नाउ डब्ल्यू ने फर्दर इसको प्रोसेस करके सेल कर दिया। किसको? आर को सेल किया। आर ने कितने पैसे दिए? 154 रुपीज। आर ने 154 रुपीज दिए। आर को 154 के बदले में क्या मिला? 140 का प्रोडक्ट और 14 रुपए का टैक्स की इनवॉइस मिल गई। 14 रुपए की टैक्स की इनवॉइस। सरकार डब्ल्यू के पास आई। डब्ल्यू, आपको मिस्टर आर ने 14 रुपए दिए होंगे मेरे को देने के लिए, मुझे वो 14 रुपए दे दो। कुछ ऐसा हुआ होगा? प्लीज करेक्ट। ये नहीं समझ आएगा तो आगे दिक्कत है। प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। जल्दी से बताओ, क्या कुछ ऐसा हुआ? आर ने 14 रुपए दिए थे। गवर्नमेंट डब्ल्यू के पास आई, डियर डब्ल्यू प्लीज पे मी 14 रुपीज जो आर ने तुम्हें दिए मुझे देने के लिए। डब्ल्यू 14 रुपए सरकार को नहीं देगा। डब्ल्यू कहेगा डियर गवर्नमेंट, ये 14 किस पे बने? गवर्नमेंट कहेगी 140 रुपए पे। डब्ल्यू कहेगा रुको, 100 रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी आपने टैक्स ले लिया था पहले ही। इस 140 में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? 100 रुपीज पुराने वाला और 40 रुपीज जो इसने वैल्यू ऐड की, ये बन गया 140। इसमें टैक्स आ गया 14 रुपए का। ध्यान से समझना, यही है क्रक्स। सरकार जब इससे 14 रुपए लेने आएगी तो डब्ल्यू क्या कहेगा? रुको मिस्टर गवर्नमेंट, ये 14 रुपए का टैक्स 140 में बना है। इस 140 में 100 रुपए वो है जिसमें ऑलरेडी पहले में टैक्स दे चुका हूं। गवर्नमेंट कहेगी क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? सर ये देखिए मैंने इनवॉइस है मेरे पास, मैंने एम को दे दिया था, एम ने रिसीविंग की है और आपने आपको दे दिया होगा। नहीं दिया तो आप निपटो एम से। मैं एम को देके आ चुका हूं आपको देने के लिए। मैं एम को देके आ चुका हूं, वो आपको दे देगा। नहीं देगा तो आप एम पे हर जाना लगाओ। आई एम नोवेयर इन बिटवीन। आपके रूल्स कहते हैं कि सेलर को दे दो, मैंने सेलर को दे दिया। फेयर इनफ? ठीक है जी। नाउ सरकार ने कहा ठीक है, ये 10 रुपए की इनवॉइस दिखा दी तूने कि 10 रुपए तूने मुझे पहले दिए हुए हैं, तो ये तो मत दे। व्हाट अबाउट द 4 रुपीज? 4 रुपीज यू हैव टू पे। तो आपने एक्चुअल में कितने दिए? 4 रुपए। चलिए अब आर के पास चले जाते हैं। आर अपने इनपुट की वैल्यू कितने रुपए रखेगा? 100 रुपए, 140 रुपीज या 154 रुपीज? 140। वाई? वैल्यू बिफोर टैक्स 100 कितना ऐड किया? 35। टोटल 175 रुपीज। टैक्स 17 रुपए 50 पैसे। टोटल 192 रुपीज 50 पैसा हो गया इसकी ब्रेड का। कंज्यूमर आ गया इसके पास खरीदने के लिए।
कंज्यूमर की इनवॉइस बनी, कंज्यूमर की इनवॉइस कितने की बनी, प्रोडक्ट कितने का है 175, प्रोडक्ट कितने का है, प्रोडक्ट कितने का है, पक्का, डाउट है किसी को, और इस पे वैट कितना है 17 रुपए 50 पैसे, टोटल 192.50, ये ले लिया कंज्यूमर से। सरकार भागे भागे किसके पास आ गई, आर के पास। डियर आर, आपको मिस्टर कंज्यूमर ने 17.5 रुपए दिए मुझे देने के लिए। डियर आर, आपने शॉपकीपर को ब्रेड के खरीदते समय 40 45 50 जो भी देते हो उसके ऊपर टैक्स सरकार उससे लेने आती है। फिर ना सरकार जो है आर के पास गई और बोला कि 17.5 रुपए दे, मिस्टर सी दे के गया तुझे। इसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं 17.5 नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे सर 17.5? क्योंकि सर मैं 14 रुपए तो मुझे आपसे लेने हैं, मुझे आपसे 14 रुपए लेने हैं। सर किस बात के ले रहे हैं, ये देखो इनवॉइस, मैं 14 रुपए डब्लू को दे के आया था और डब्लू को बोला था कि आपको दे दे। 14 रुपए की रसीद है मेरे पास, कौन सी, ये इनवॉइस इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो तर्क ये देगा, दूसरा ये कहेगा सर ये 192 के अंदर 140 तो पुराना है, जिसपे तो 14 रुपए पहले से टैक्स लगा हुआ है, वो मैं पे कर चुका हूं, वो 14 रुपए मुझे आपसे लेने हैं और देने हैं 17.5 रुपए, तो मैं 14 तो इनवॉइस दे दूंगा, बचा हुआ कितना 3.5 आई विल पे, आई विल पे, फेयर ना। तो बच्चों एक चीज जो 100 रुपए पे स्टार्ट हुई थी उसमें वैल्यू एडिशन कितनी हुई, सेम वैल्यू एडिशन हो गया 175 हो गया। एट विच प्राइस इट इज बीइंग सोल्ड, 192 रुपए 50 पैसे। सर इसके अंदर कितने रुपए का टैक्स आ गया है, 17 रुपए 50 पैसे का टैक्स आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स हियर, नियर अबाउट 192 पे तो 9.09 आएगा और 175 पे 10% आएगा, ठीक है। तो चलो 175 पे भी लेते हो तब भी कितना है 10% की टैक्स की रेट, और हमारी रेट एक्चुअल में कितनी थी 10, 17.5 रुपए टैक्स लग गया आपको। विच वन इज बेनिफिशियल, महंगाई किससे कम हो रही है, 175 की चीज 192 में बिकती है और यहां 175 की चीज 220 में बिकती है। यहां पर आपसे टैक्स 25 रुपए 72 मतलब 26 रुपए लिया जाता है आपसे, और यहां आपसे टैक्स 10% जो बोला था प्रॉमिस किया था वो लिया था। विच वन इज बेटर, द सेकेंड मेथड इज बेटर। आप मानेंगे जब आए थे ये टैक्सेस तो बसें तोड़ी गई थी, आग लगाई गई थी, एक माहौल क्रिएट किया गया था देश में कि सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, हमारे ऊपर नए नए टैक्सेस ले आती है, घोटाले कर रही है, अपनी जेब भर रही है। और कुछ जैसा मैंने बताया कुछ लोग होते हैं हु डोंट चेक द फैक्ट्स एंड उसी रिदम में स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ जी बहुत गलत हो रहा है, मुझे ये बताओ कहां गलत हो रहा है सब पब्लिक के साथ, क्या ये पब्लिक के साथ बेटर है कि नहीं, ये तो पब्लिक के साथ बेटर हुआ है ना, कहां हुआ है गलत। तो बिना फैक्ट्स को चेक किए हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। दिस इज योर सिनेरियो ऑफ द बैक। अब आते हैं जीएसटी पे, कोई यहां तक डाउट है तो पूछो आप, कोई डाउट,
यू वांट टू टेक एनी क्वेश्चंस? समझ आ गया सारा? एक वर्ड होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, एक वर्ड होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स या मल्टीपल टाइम्स टैक्स लगाते रहते। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर 100 रुपए पे टैक्स लगा, यहां पे इस 110 में क्या इन्वॉल्व है? 110 के अंदर 10 का टैक्स और 100 का ये प्रोडक्ट है कि नहीं? और टैक्स कितना आया? 15 रुपए। इस 150 में भी 110 है कि नहीं? 150 में क्या क्या 40, 150 की बाइफिकेशन क्या है? 100 प्लस 10 प्लस 40, ऐसा है? क्या इस 100 पे आप पहले टैक्स दे चुके हो? क्या यहां पर दोबारा से टैक्स आ गया इसके ऊपर? मल्टीपल टाइम टैक्स हो गया एक ही चीज में, हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस 100 के अंदर 10 रुपए का टैक्स भी है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगना चाहिए? गुड्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स तो गुड्स पे लगता है, या टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है? ये देखो, इसमें तो 10 रुपए 15 रुपए का जब टैक्स निकाला है आपने, तो इसमें तो कुछ हिसाब ध्यान से देखो क्या है। क्या 10 रुपए के ऊपर भी टैक्स लगा है? लगा कि नहीं? तो टैक्स ऑन टैक्स भी हो गया, है ना? और 100 इस जब 165 आया तो इसमें 100 भी है, फिर 110। ध्यान से देखो, क्या इस 100 पे दोबारा एक बार और टैक्स लग गया? क्या इस 40 पे एक बार और टैक्स लग गया? क्या इस 10 पे एक बार और टैक्स लग गया? और क्या इस 15 पे एक बार और टैक्स लग गया? और ऐसे तो ये चेन जब चलती रहेगी बहुत महंगा हो जाएगा। तो मैंने तो 3 ही सीरीज बनाई है अभी तो, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, अनदर होलसेलर, डीलर, रिटेलर, रिटेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। प्रोडक्ट तो अलग लेवल पे चला जाओ, है ना? यहां देखो, यहां है कि टैक्स और टैक्स इज देयर। व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स? अपने क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करो। आपने यहां कितनी वैल्यू ऐड की? 10 रुपए, 10 रुपए। आपने 100 ऐड की। रेट ऑफ टैक्स इन इकोनॉमी 10%. हाउ मच यू पेड टू द गवर्नमेंट? हाउ मच वैल्यू यू एडेड हियर? हाउ मच यू पेड टू द गवर्नमेंट? 10%, 10% के हिसाब से। हाउ मच वैल्यू यू एडेड हियर? हाउ मच टैक्स यू पेड टू द गवर्नमेंट? 10%। वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू ऐड की उतने पे टैक्स। क्लियर ना? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? सर जीएसटी, वैट आने से कैस्केडिंग इफेक्ट्स हट गए थे, ये आपने देख लिया। कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट थोड़े से रह गए, तो छोटा सा समझा देता हूं। आपने सुना होगा एक वर्ड, वन नेशन वन टैक्स। सुना ये आपने नाम? वन नेशन वन टैक्स सुना आपने? वन नेशन वन टैक्स। व्हाट इज वन नेशन वन टैक्स? ध्यान से समझो। व्हेन वी यूज द वर्ड वन नेशन, एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स का मतलब क्या है? सर बहुत सारे टैक्स जिसके अंदर खत्म कर दिए, आगे की क्लासेस में मैं समझाऊंगा कैसे बहुत सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। सर एक वर्ड होता था एक्साइज टैक्स, एक होता था एक्साइज, वो इसके अंदर खत्म हो गया। इसके अलावा और कौन से टैक्सेस थे सर? इसके अंदर वैट को हटा दिया गया, एक सर्विस टैक्स होता था वो हटा दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था वो हटा दिया, और बहुत सारे टैक्सेस थे। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी? आप ध्यान से देखिए इधर, अगर आप प्लीज पेड, जब इसने 100 रुपए की ये चीज बनाई होगी, एक्साइज किस पे लगता है?
एक्साइज जैसे वैल्यू एडेड टैक्स या सीएसटी लगता है सेल पर, इनकम टैक्स लगता है इनकम पर। एक्साइज किस पे लगता है? एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कस्टम लगता है एक्सपोर्ट। एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। बच्चों जब इसने ये 100 रुपए की चीज बनाई, मैन्युफैक्चर किया, बनाई मतलब मैन्युफैक्चर, तो इसके अंदर एक्साइज इन्वॉल्व है। जीएसटी की नीड क्या हुई वो बता रहा हूं। इस 100 में एक्साइज इन्वॉल्व है। जब इसने इसको फिर से बनाया यहां पे, जब इसने इसको यहां पर फिर से बना दिया, यहां पर भी कुछ ना कुछ बनाया, वर्ड क्या है? बनाया, मैन्युफैक्चर किया, तो यहां पर भी एक्साइज इन्वॉल्व है और यहां पर भी एक्साइज इन्वॉल्व है। एक ही टैक्स के ऊपर बार बार टैक्स लग रहा है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट आज भी है। इस वजह से यहां पर क्या आ गया? जीएसटी आया और वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट आ गया और बोला कि ये सब खत्म कर दो और एक ही टैक्स लगाओ, ओनली वन, दैट इज जीएसटी। तो अब क्या हुआ? ये जो 100 रुपए पे एक्साइज लग रहा था वो हट गया। अगर लग भी रहा है तो उसका क्रेडिट मिल जाता है। यहां जब आपसे सरकार 10 रुपए लेने आएगी ना, ये 10 रुपए लेने आएगी सरकार, आप कहोगे सर मेरे को आपसे कुछ लेना है क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ पे किया है, मैं 2 रुपए पे करके आया हूं। इस 100 रुपए के अंदर मेरे 98 का प्रोडक्ट है, 2 रुपए के एक्साइज है या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है। आप मुझसे 10 लेने आए हो, 10 ले लीजिए, पहले 2 माइनस कर दो क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे कर चुका, क्योंकि जीएसटी पे किया है और जीएसटी वाला ही लेने आ गया। समझो पहले दिक्कत क्या आती थी? पहले दिक्कत क्या आती? वैट डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम से समझ आ रहा है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सर्विस टैक्स होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैल्यू एडेड टैक्स होता था स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। पे करके आए हो एक्साइज और आगे पे कर रहे हो वैट, मतलब पीछे पे करके आए हो एक्साइज और फर्दर कलेक्ट किया है आपने वैट। फिर से आपने अपने सेलर को क्या पे करके आए? एक्साइज। मैन्युफैक्चरिंग पे आपने एक्साइज पे कर दिया, जब चीज बना रहे थे बनाने के दौरान एक्साइज पे किया। हा? और अब कलेक्ट क्या कर रहे हो आप? वैट। वैट कलेक्ट किया तो वैट डिपार्टमेंट आ गया आपके पास कि आपने मेरे भी आप पे टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स दे दो। आपने कहा मेरे को एक्साइज पे करके आए हो, मुझे उसका क्रेडिट दो। वैट डिपार्टमेंट कहता है मैं हूं केजरीवाल, मोदी से बात करो तुम, मैं क्यों माइनस करूं अपना पैसा? मेरी रेवेन्यू कहां से आएगी? मैं अपने एडवर्टीजमेंट कहां से दूंगा? मेरा पैसा दिल्ली की गवर्नमेंट का रेवेन्यू या राजस्व कैसे बढ़ेगा अगर मैं इस तरीके से? तो मेरे को बहुत घाटा हो जाएगा। कैसे? सर आप पे करते हो एक्साइज किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया आपने, लेट्स अज्यूम 2 रुपए, और आपने सेल करके कलेक्ट किया 10 रुपए का वैट, ये देना था दिल्ली गवर्नमेंट को। दिल्ली गवर्नमेंट जब आपसे लेने आई तो आपने कहा मैं तो आपको 8 रुपए दूंगा, 2 रुपए की ये स्लिप ले लो आप मुझसे। तो भाई 2 रुपए तूने दिए किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से सेट ऑफ कर, हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? स्टेट के। अगर तुमने कुछ स्टेट में दिया है तो हम सेट ऑफ करने को अलाउड है। तो उसने कहा सेट ऑफ सेंट्रल को दिया मैंने, स्टेट को तो दिया नहीं, तो आपको सेट ऑफ करना नहीं अलाउड। तो ये हर बार क्या होता था? ये हर बार 10 रुपीज स्टेट को देता था और 2 रुपीज सेंट्रल को देता था, और वो चुप भी रहता था, वो दिखा भी नहीं सकता था वो 2 रुपए, और सेंट्रल से वो कभी सेट ऑफ कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो कलेक्ट हमेशा ही क्या कर रहा है? वैट कलेक्ट कर रहा है, अगर वो स्टेट में बेच रहा है तो ये पाइलअप होता जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो ये सारी चीजें, वन नेशन वन टैक्स लेके आओ, एक ही डिपार्टमेंट बना दो इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नाम है जीएसटी। तुम मैन्युफैक्चरिंग पे भी यही करो, सेल पे भी यही करो।
जिससे कम से कम जब 10 रुपए गवर्नमेंट लेने आएगी तो तुम कहोगे कि 10 रुपए का जीएसटी के नाम से ही मैंने टैक्स दिया हुआ सर। अब तुम इंटरनली समझो, गवर्नमेंट, यू डील विद योर डिपार्टमेंट, हम तो एक ही सरकार को जानते हैं, हमारे देश की एक गवर्नमेंट है, हम ये मानते हैं, एक ही डिपार्टमेंट है इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी। आप ये नहीं कह सकते कि वो जीएसटी तो तुमने मैन्युफैक्चरिंग पे दिया है, ये सेल पे दे रहे हो, नहीं। आपने अगर जीएसटी पे किया है तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से सेट ऑफ मिल जाएगा। अब जब वो 10 रुपए लेने आएगी तो इसमें से 2 रुपए माइनस करके ये 8 रुपए दे देगा, इससे कॉस्ट और कम हो गई। समझा कैसे है? कॉस्ट और कम कैसे होगी, समझ आएगा ना? ये 8 रुपए हो गई। आगे वाला जब अपनी इनवॉइस लिखेगा तो वो 100 नहीं लिखेगा, 98 लिखेगा। 2 रुपए जा चुके, टैक्स तो जोड़ना ही नहीं है ना अपने को, 98 लिखेगा। ये 98 वाला जब 40 का टैक्स लगा रहा था, इस 40 में लेट्स अज्यूम 10 रुपए का एक्साइज था, मैन्युफैक्चरिंग का था, 40 रुपीज की वैल्यू ऐड कर दी उसने 98 एंड देन ही वाज पेइंग समथिंग 14 रुपीज, लेट्स अज्यूम इसमें 2 रुपए का टैक्स था, तो वो सेट ऑफ करके और आगे वाला जो है वो कितनी वैल्यू लिखेगा, वो 2 रुपए और कम हो जाएगी, इससे महंगाई और कम होगी। कैस्केडिंग इफेक्ट्स नील हो चुका है जीएसटी के आने की वजह से, एक्साइज का जो इफेक्ट था वो भी खत्म। वन नेशन वन टैक्स। सर कोई भी टैक्स जब आता है, कोई भी टैक्स जब आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो ऐसा सरकार का जो मन किया कि ये लो जी हम तो टैक्स लेके आएंगे, आपको लगाना पड़ेगा, लगाइए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस सरकार का जो मन किया उतना टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं चलता है। मतलब सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती है क्या? या लगा सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके का टैक्स अपनी मर्जी से आपके ऊपर थोप सकती है क्या? क्यों? फिर कौन थोप सकता है, कौन लगा सकता है? एज मतलब श्रीमान भीमराव अंबेडकर जी तो डिसाइड करके गए थे, उस पे किसने डिसाइड किया था? या राम भगवान जब सतयुग में डिसाइड करके गए थे? कौन डिसाइड करके गया था? कहां से आई आवाज? कौन सी एक्ट के अकॉर्डिंग? जीएसटी एक्ट को, मैं यही तो कह रहा हूं, क्या एक्ट जीएसटी बना ही नहीं था तो फिर जीएसटी कैसे आ गया? क्योंकि जीएसटी के अकॉर्डिंग अगर टैक्स लेना है तो जीएसटी तो बना ही नहीं था। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने मन से कोई भी टैक्स नहीं ला सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अधिकार है। अधिकार कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सवाल आया कि सर जीएसटी का अधिकार कहां से आया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? सर जीएसटी का अधिकार 122 122वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122, बट इट वॉज पास्ड 101वीं 122वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आया था ये 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बट पास्ड अंडर 101 अमेंडमेंट एक्ट। पास्ड अंडर 101 अमेंडमेंट एक्ट, 101वीं अमेंडमेंट एक्ट में पास हुआ था। क्लियर? ऐसा मन किया तो नहीं ला सकते कि मेरा मन किया तो ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन में पास करना पड़ेगा। कौन से ईयर में? 2016 में।
इफेक्टिव कब से हुआ था ये? जीएसटी वॉज इफेक्टिवली एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में आया था? फ्रांस में आ गया था 1954 के अंदर। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी 1954 में। आप ये देखो, हमारे पास लगभग लगभग 6 डिकेड्स, लगभग 6 से 7 डिकेड लग गए हमें हमारे यहां पर वो लेके आने के लिए जो वो देश पहले लेके आ चुका था। लगभग 6 से 7 डिकेड लग गए। मलेशिया इज द लास्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी सो फार। मलेशिया इज द लास्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट द जीएसटी सो फार। Malaysia is the last country to implement GST so far. जापान लेके आया था 1989 के। जापान जब लाया था तो ये 3% पे लेके आया था, देन सडनली इन्होंने इसको 5% किया और जापान एक ग्रेट रिसेशन में चला गया। महंगाई बहुत बढ़ गई थी, 5% करते। दिस वॉज द वन ऑफ द मेन रीजन कि कोई भी गवर्नमेंट जीएसटी को लेके आने से डर रही थी। एक लंबे समय तक भारत में इंडिपेंडेंस के बाद जीएसटी नहीं आया, इसका एक रीजन था, किसी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत थी जो इसको लेके आए, क्योंकि जापान में जब जीएसटी लाया था उसमें वहां पर इतना जबरदस्त रिसेशन आ गया था कि किसी की गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने देश के अंदर जीएसटी को लागू करे। तो फिर हमने इंडिया के अंदर लागू किया, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई। आपको जान के हैरानी होगी, यूएसए वन ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स, आज भी वहां पर जीएसटी नहीं। यूएसए में स्टेट टैक्स, यूएसए के अंदर जीएसटी नहीं है। स्टेट, नेशनल स्टेट टैक्स है वहां पर। नियर अबाउट टोटल 160 कंट्रीज में जीएसटी आज एप्लीकेबल है। 160 कंट्रीज में जीएसटी लागू है। इंडिया का सबसे पहला स्टेट, इंडिया का सबसे पहला स्टेट है, कौन सा स्टेट है? असम या कोई और? कौन सा स्टेट है इंडिया का सबसे पहला? Which state is the first state in India to pass the state GST bill? आवाज धीरे है, थोड़ी जोर से बोलो। Which state has passed the GST state bill firstly in India? Assam is wrong. Telangana. Assam was the first state to rectify GST bill. कहते यही है कि जीएसटी सबसे पहले लेके वही आया था। हाँ बिल्कुल वही लाया था, बिल इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, बट पास उससे पहले तेलंगाना ने कर दिया था। होता ना, पहले आया फिर चर्चा हुई, तो चर्चा में थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, तेलंगाना पहले ले गया। तो अगर एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है असम ने क्या किया था? असम वॉज फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई और इंट्रोड्यूस भी जीएसटी बिल, बट कौन से स्टेट ने? तेलंगाना was the first state to pass state GST bill.
सेंट्रल तो वो पास ही नहीं कर सकता ना, स्टेट जीएसटी। अगर ऑप्शंस में तेलंगाना ना हो तो आसाम पे क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर थोड़े बहुत एमसीक्यू आते तो ये बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चन आप। जीएसटी में कितनी स्लैब्स है और हाईएस्ट कौन सी है? इंडिया की हाईएस्ट जीएसटी की रेट है 28%। वर्ल्ड की नंबर 1 है। दुनिया में हमसे ज्यादा टैक्स जीएसटी का स्लैब किसी का नहीं। हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड 28% एंड द क्रेडिट गोज टू इंडिया। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है 28% की रेट। नेक्स्ट 2, इसके बाद कौन है? अर्जेंटीना। 27% पे। इंडिया में जीएसटी की 4 रेट्स हैं। इंडिया में जीएसटी ने 4 रेट्स बनाई हुई, 5%, 12%, 18% और 20%। तो कुछ लोगों ने कहते हैं, तर्क आते हैं कि सर हमने तो 2.5 भी देखा है बिल में जीएसटी, और कईयों का 9% का भी आता है। ठीक है, जीएसटी कैसे लगता है? जीएसटी ड्यूल टैक्स मैकेनिज्म है हमारे इंडिया के अंदर। ड्यूल टैक्स मैकेनिज्म है। ड्यूल टैक्स मतलब एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये 50-50 हो जाता है। तो 5 वाला 2.5, 12 वाला 6, 9 वाला 18 वाला 9 और 28 वाला 14। हाईएस्ट रेट ऑफ सीजीएसटी अगर आ जाए, कितनी है? कितनी बताइए मुझे? हाईएस्ट रेट हमारी 14%। हाईएस्ट रेट ऑफ सीजीएसटी, ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी वहां पर एग्जाम में कर सकते हैं। हाईएस्ट रेट ऑफ सीजीएसटी 14%। इज देयर एनी अदर रेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया? क्या जीएसटी की कोई और रेट है इंडिया में? जी बिल्कुल है सर। एक स्पेशल रेट बनाई है 0.25% की रफ डायमंड के ऊपर। और एक 3% की रेट बनाई है प्रेशियस मेटल पे। ठीक है, गोल्ड खरीदो आप तो 3% देना पड़ता है ना, वही है ये 3%। जीएसटी के टोटल 5 बुक्स हैं हमारे पास। टोटल 5 लॉ है जीएसटी के। तो इसको बोलते हैं हाउ मेनी लेजिस्लेशंस आर देयर फॉर जीएसटी। इंडिया में कितने लेजिस्लेशन? 5 है। एक है सीजीएसटी का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका। एक है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका। एक है कॉम्पनसेशन, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट। ये क्यों आया? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ जीएसटी को इंप्लीमेंट करने से मना कर रही है कि भाई हमें घाटा हो जाएगा, वैट में तो हम बहुत कमाते हैं। तो सरकार ने कहा जो आपको घाटा लगेगा वो हम कॉम्पनसेट कर दें, उसके लिए एक अलग से एक्ट आ गया।
The most important event in GST और in your course, सबसे ज्यादा important है, the most important, that is taxable event under GST. GST में taxable event क्या है? सप्लाई. सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट पड़ रहा है. जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन. हेडक्वार्टर है दिल्ली. हेडक्वार्टर का जीएसटी काउंसिल का दिल्ली में. और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं. जीएसटी डे कौन सा होता है? 1 जुलाई जीएसटी डे इन इंडिया. थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कितनी है? जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए. 20 लाख तक जीएसटी नहीं लगेगा. अगर आप स्मॉल छोटे व्यापारी हो, 20 लाख रुपए के टर्नओवर तक जीएसटी देने की जरूरत नहीं है. कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए 10 लाख भी है. कुछ स्पेशल स्टेट्स है, वो हम आगे जब डिटेल में करेंगे तो आएगा. द अमाउंट वुड बी, द लिमिट वुड बी 10 लाख. हाँ जी बोलिए. हाँ